मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा चलो इनिशिएट करो, बीच में वो आ जाएगा। आ गया सर, आ गया। ठीक है। हेलो। हाँ वेट। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। Morning sir. So our business model is in a tuition platform, online tuition platform, and the name is Friendly Shiksha, and our total budget is 1,50,000, and actually we were three people in this group, but right now only two are present, me and Nikhil. So Nikhil, slide next. Okay. So yesterday I also explained that what Friendly Shiksha is. That Friendly Shiksha is basically an online platform where platform for teachers, students, and guardians, where teachers can get students to who are willing to take tuitions, and students can get teachers who can give them tuitions, and and our and We lost him. Vivek, are you there? Vivek, can you get the voice? Kya Nikhil, is he there? Yes sir, yes sir. I cannot get his voice, Nikhil. Where is Vivek? Vivek got disconnected. तुम भी कंटिन्यू करो ना, चलो तुम भी तो बोल सकते हो, जितना आएगा वो देख लेगा। ओके 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 सर, ठीक है, जो आएगा वो देख लेगा। Friendly Shiksha basically an online platform for teacher and student. It is clear that Friendly Shiksha aims to provide home tuition to students. Our target audience is class 6 to 12th, where we can provide a service like we provided home tuition for student. Okay, so these are the competitors these are the competitors. Our competitor Urban Pro, Vidyalaya.com, Trust Study, LearnPick, and these are the competitors. Um, some points like 8 seconds, sir. Are you using a Mac? Excuse me. Yes, sir. Mac use कर रहे हो क्या तुम? Yes, sir. Sir, these are the competitor strategy. Like competitors are charging 50% of every commission on every We have gone through tuition. this slide in the previous class. इसको तो skip करके आगे बढ़ सकते हो. We have gone through this slide. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Vidyalaya, LearnPick, Superprep.com. This is also our competitor. These are charging 699 for every student for 30 days class के लिए वो लोग 699 चार्ज करते हैं, and yearly 5000. और घर पे शिक्षा.com, my trymytutor.com. So why customer, why guardian choose Friendly Shiksha? How we differ? What is our USP? Like first of all, we provide low cost registration charge. It means कि we do not charge any registration charge to any tutor. Like कि जो भी offline brokerage में होता है कि 500 चार्ज करते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर. हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है. हम लोग कोई कमीशन, वी आर नॉट चार्जिंग एनी कमीशन, वी आर जस्ट चार्जिंग ओनली 700 सर्विस चार्ज. ब्रोकर, ऑफलाइन ब्रोकर क्या करते हैं कि वो लोग फर्स्ट मंथ का पूरा सैलरी ले लेते हैं, और अभी ऑनलाइन में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ये लोग 50% कमीशन चार्ज करते हैं, 50% कमीशन चार्ज करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हम लोग पूरा चार्जेस भी नहीं करते, हम लोग सिर्फ 700 सर्विस चार्ज लेते हैं पर ट्यूशन. वी आर ऑफरिंग फ्लेक्सिबल रेट, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ ट्यूशन विल बी फ्लेक्सिबल, fixed by tutor and student themselves. Free demo classes, we also provide free demo classes, free teacher exchange policy, free textbook
solutions, free monthly test series, free registration. We also provide free registration for students. They do not pay, student do not pay to a single coin at the name of registration. No coins or membership required to get leads, and no prepaid. No prepaid. We ask for money after a week to satisfy of joining a tutor. मतलब हम लोग ट्यूशन टीचर से पहले पैसा नहीं लेते हैं और ना ही गार्जियन से. अगर वो सेटिस्फाई है तभी वो हमको पे करेंगे. These are the marketing. So these are the our services. So your question is how we market our services. First of all, we make a website and a mobile app costing 70,000. We uh, uh, doing a social media market of rupees 20,000. Google and YouTube ads 20,000. आज ही And आया है, आज वहाँ पे आज आने वाला था. आज तो नहीं आया वो, देखो हिंदुस्तान. आज तुम बोल रहा था कि पेज खाली नहीं, तो एक सेकंड. give them a free solution weekly webinar. Hello. Yes, This continue. marketing. Yeah, we also done a marketing via internship. Here is the marketing funnel. First of all, we create a marketing funnel, sales funnel. How we aware our targeted audience. See, sir. One more thing. Actually, we are targeting our targeted location is Patna. So we are trying to cater targeted the Patna location. Patna populations are total population of Patna are so here's the total population of Patna. रूरल में है सर टोटल 33,23,875 और अर्बन में 25,14,590. उसके बाद सर ये लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड किए तो मेल का ये आया परसेंटेज और फीमेल का 61.69%. 96%. इसमें हम यस सर. सो हम लोग क्या किए कि पटना में हम लोग एक रिसर्च कंडक्ट किए, ठीक है, और रिसर्च किए कि वहाँ पे पटना में ऑलमोस्ट 50 स्कूल्स हैं जिनमें 8 क्लासेस एक हर स्कूल में एवरेज आया है कि 8 क्लासेस हैं हर स्कूल में, और हर स्कूल में 2 सेक्शन है एवरेज, और पर सेक्शन में 40 स्टूडेंट है. ठीक है, तो हमारा टोटल स्टूडेंट हो गए पटना में 32,000. हम लोग 5% का कन्वर्जन रेट लेके चल रहे हैं 6 महीने में. हम लोग 1,50,000 इन्वेस्ट किए हैं टोटल और हम लोग 5% का कन्वर्जन रेट लेके चल रहे हैं. तो 32,000 का 5% हुआ 1,600 और हम लोग पर टीचर से 700 चार्ज कर रहे हैं. तो हमारा रेवेन्यू मॉडल ये हुआ सर 11,20,000 रुपये हम लोग 6 महीने में अर्न करेंगे. 11,20,000 वो कैसे हम लोग अर्न करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग फनल बनाएंगे. यहाँ पे अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसीडर, इंटेंट, इवैल्यूएशन एंड परचेज. सबसे पहले हम सर पटना के लोगों को, गार्जियंस को अवेयर करेंगे कि वो हमारे थ्रू क्यों ट्यूशन लें, और टीचर को भी अवेयर करेंगे कि वो हमारे जाके हमारे प्लेटफॉर्म पर क्यों रजिस्टर्ड हो, ताकि वो ज़्यादा ब्रोकर को चार्ज ना दे सके और जो कमीशन है 100% का उससे देने से वो बचे. 1 टाइम फी है 700, जिससे टीचर्स तो बहुत अट्रैक्ट हो गए. और गार्जियन को ये सब हम लोग बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं, लाइक कि उन्हें हम लोग जो ये फ्री एक्सचेंज पॉलिसी दे रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर बना रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि जो भी टीचर जाएंगे उनका हम लोग एक 1 वीक का एक मतलब पर्सनल डेवलपमेंट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं कि टीचर को बताएंगे कि कैसे पढ़ाना है आपको. लाइक उसमें वो फोन वगैरह भी यूज कर सकते हैं. अगर वो 5-6 क्लास का बच्चा है, अगर वो सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो उसी टाइम वो फोन पे यूट्यूब वगैरह पे दिखा सकते हैं सोलर सिस्टम, ताकि बच्चा जो विजुअलाइज कर सके थिंग को और ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके.
तो इस तरीके का क्रिएटिव ऐड हम लोग इमोशनल ऐड को बनाएंगे, वहाँ पे लोगों को अवेयर करेंगे और यहाँ पे एक हम लोग लीड मैग्नेट देंगे, मतलब कि फ्री में हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फ्री में गार्जियन को बोलेंगे कि अगर आपका कोई भी बच्चे का डाउट है या फिर क्विजेज वगैरह है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्विजेस कीजिए, जनरल नॉलेज बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो ये हमारा लीड मैग्नेट रहेगा, वहाँ पे हम लोग गार्जियन को अट्रैक्ट करेंगे, फिर उनको नर्चर करेंगे, उन गार्जियन को एजुकेट करेंगे कि हमारा सर्विस क्यों बेटर है बाकी कॉम्पिटिटर से, क्यों लेना चाहिए। उसके बाद फिर फाइनली सर उन्हें हमारा सर्विस जो है अगर अच्छा लगेगा तो वो सेल करेंगे। और ये हमारा जो भी एक्सपेक्टेड फिगर था, जो 5% का कन्वर्जन रेट लेके चल रहे हैं, तो वो आया है सर 6 मंथ में 11,20,000 का हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। That's all, sir. Okay, so are you all done now? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो अब इसमें थोड़ा मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, इसमें तुमने SWOT एनालिसिस क्या किया, थोड़ा मेरे को उसके बारे में बताओ। What has been your SWOT analysis? Yes. SWOT एनालिसिस सर ये किया है कि सबसे पहले तो होम ट्यूशन मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बड़े शहरों में नहीं मिल पाते हैं ट्यूटर, अच्छे ट्यूटर नहीं मिल पाते हैं। और दूसरा क्या क्या है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो, जैसे कि हम लोग भी सर कॉलेज में है और अगर हमें पार्ट टाइम के लिए अगर किसी को पढ़ाना है तो ब्रोकर पकड़ना पड़ता है और 1 महीने का पूरा सैलरी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो जो टीचर है उनके लिए भी ये सही नहीं है, वो देना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रेंथ यही आया, इसीलिए हम लोग 700 फ्लैट चार्ज कर रहे हैं, 700, कोई कमीशन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं। और मार्केट में इसका नीड बहुत ज़्यादा है सर होम ट्यूशन का, क्योंकि ये गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो जो गार्जियन है जिनकी बच्ची हैं, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो हमारी बच्ची जाके कहीं और पढ़े, वो फर्स्ट प्रेफरेंस करते हैं कि हम टीचर आए घर पे और वो पढ़ा पाए। तो यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट है वहाँ से हम लोग का कन्वर्जन ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, और तो आप बाकी ये अपना सवाल करिए, आस्क योर क्वेश्चंस। Yes, sir. हमारा Batch पार्टनर अभी तक नहीं 124. आया, एक बार जो गया निखिल वो दोबारा नहीं आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. आ गया अभी तुम? connect ठीक हुआ है, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, चलिए क्वेश्चन करिए, आप लोग का क्या क्वेश्चन है? Yes, sir. Batch 124 section. हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन था निखिल सर कि क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होगा, क्योंकि तुमने 5% कन्वर्जन रेट का बात किया, तो 5% बिल्कुल। कन्वर्जन रेट किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ह्यूज नंबर होता है, और तुम लोग सिर्फ 700 रुपये चार्ज कर रहे हो एक फ्लैट फी, और कोई कमीशन नहीं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होगा? बिल्कुल सस्टेनेबल है सक्षम, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस नहीं है, हमारे ऑफिसेज नहीं है, हमारा जो भी कॉस्टिंग आएगा वो सिर्फ एक होस्टिंग का आएगा और जो सर्वर का जो भी कॉस्ट आता है जो 1 या 2% का आएगा, बस। हम लोग टीचर पे कोई कॉस्टिंग नहीं आना है, एम्प्लॉय पे कोई कॉस्टिंग नहीं आना है। जो वन टाइम जो 1.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं, अगर सिर्फ पटना शहर पे मैं बात करूँ तो 5% का कन्वर्जन रेट एक्सपेक्टेड है मेरा, 2 या 3% कन्वर्जन रेट मान के हम लोग चले हैं कि 2 या 3% आएगा। अगर 2 या 3% भी आता है तो हमारा जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके 2 to 3 टाइम्स हम लोग रिकवर कर लेंगे विद इन 5 to 6 मंथ। और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एजुकेशन वाला इंडस्ट्री और होम ट्यूशन कभी खत्म नहीं होना है। सो आई थिंक ये सस्टेनेबल है। Hello. Yes, ask questions. Keep asking questions. आप लोग Saksham. अपना question choose Enrollment करिए। and Komal Kumari. Sorry? Actually, I'm asking a question. Graduation जो complete कर लिए हैं उन्हीं को बस available है, जो नहीं, अगर ये वो ऐसा कुछ- फर्स्ट ऐसा ईयर में है या सेकेंड ईयर में है वो ऐसा नहीं कुछ करते हैं। नहीं कोमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th से लेके ग्रेजुएशन के बच्चे जो भी है या जो भी विलिंग है पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल है। बट हमारी टीम सबसे पहले उनकी एक इंटरव्यू लेगी कि वो पढ़ाते कैसे हैं। किसी को भी हम लोग हायर नहीं करेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन होगा जहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं उनके पास कितना नॉलेज है। कोई उसे फुल टाइम भी कर सकता है, पार्ट टाइम भी कर सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है Yes, ask. कि what are the first 3 steps you would like to take towards launching your business, launching your this business plan? What first steps? पहले 3 वो कौन से स्टेप होंगे तुम्हारे
इस बिजनेस को फिजिकली मींस मार्केट में लाने के लिए? सबसे पहला 3 स्टेप वही होगा हमारा कि सबसे पहले हम लोग वेबसाइट लॉन्च करेंगे, उसके बाद ये मार्केटिंग फनल पे काम करेंगे। अब अपने टारगेट ऑडियंस को सबसे पहले अवेयर करेंगे, उसके बाद जो भी मैंने लीड मैग्नेट अभी बताया उसके थ्रू हम लोग अवेयर करेंगे, और जो भी लीड मैग्नेट्स में आए गार्जियन, उनको नर्चर करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि होम ट्यूशन अभी के टाइम पे, या फिर अगर लड़की है तो क्यों ज्यादा जरूरी है कि आप घर पे पढ़ाइए। ये सारा कुछ पहले उनको नर्चर करेंगे, ठीक है, उनको पहले एजुकेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना सॉल्यूशन देंगे कि हम लोग ये प्रोवाइड सर्विसेज देते हैं, ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। These are the 3 steps. और कोई क्वेश्चन है? Sir, I have a question. Yes, sir. Yes, ask. नाम बताओ बाबू। Sir, batch 151 अभिषेक शर्मा। अभिषेक बोल बाबू। Yes sir. निखिल, जैसे तुम लोग का बिजनेस तो अभी स्टार्ट हुआ है, मार्केट में बहुत लोग जानते भी नहीं है इसको, अवेयर नहीं अभी तक वहाँ पे, तो Exactly. तुम लोग ने स्टार्टिंग मंथ का कितना रेवेन्यू सोचा है? मतलब क्या एक्सपेक्ट करो कि कितने टीचर्स आएंगे, कितने स्टूडेंट्स आएंगे, किस हिसाब से रेवेन्यू तुमने सोचा फर्स्ट मंथ का तुम्हारे? हाँ, टीचर्स बहुत आएंगे, उसके 2-3 रीजन है। अभी का जो टाइम है अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ा, और दूसरा स्टूडेंट को चाहिए पार्ट टाइम कुछ ना कुछ अर्निंग चाहिए। अभी ग्रेजुएशन जो हमारे साइड, मतलब हम तुम जो हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ हमें पार्ट टाइम मिल जाए कॉलेज के साथ साथ, के कुछ पॉकेट मनी आ जाए, तो टीचर आएंगे। और मैं ऐसा बताना चाहूँगा सर कि ये बिजनेस एक्चुअली हम लोग का अभी डेमो बेसिस पे रन कर रहा है, और फर्स्ट मंथ में आई थिंक हमारे पास 400+ रजिस्ट्रेशन आ चुके थे टीचर्स के। हम लोग 2-3 ट्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, रांची में हम लोग ट्यूशन प्रोवाइड किए हैं, और मैं आपको फेसबुक पेज वगैरह भी दिखा सकता हूँ सर कि हम लोग का क्या मार्केटिंग चल रहा है अभी। तो वहाँ से रांची में बहुत that is a good news by the way. I mean, making a plan is one thing, but if you are able to run a business, or if you are following this particular thing, this is really very good. I am happy doing this. अभिषेक, हाँ देखो, तुम्हारे सवाल का एक और आंसर कि हम लोगों ने जो जैसे उत्तम ने किया था कि 3 स्टेप क्या होगा, तो उसमें इनिशियली एक और स्टेप ये भी होगा कि हम लोग इनिशियली जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम लोगों ने जो डेमो बेसिस पे ट्रायल रन किया, इससे हम लोग को जो एक नेगेटिव पॉइंट पता चला, उससे तुम्हारा जवाब है कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को हायर करेंगे, यानी कि टीचर्स को ले लेंगे। तो सभी एरियाज है, क्योंकि हम लोग टीचर से कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमारे पास वो टीचर क्लेम नहीं कर सकते कि आपको इतने दिन के अंदर ट्यूशन देना ही पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग शुरू में जब टीचर्स का एक पूल बना लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स को अगर फर्स्ट मंथ को छोड़ के सेकंड मंथ से टारगेट करें, तो उस टाइम पे हम लोग स्टूडेंट्स को जैसे ही टीचर का नीड आएगा, हम लोग इमीडिएटली उसको सर्व कर सकते हैं। ओके सर, अभी तो सोशल मीडिया पे हम लोग का चल रहा है ये सारा कैंपेन वगैरह है। वेरी गुड। मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग स्टार्टिंग मंथ का मतलब क्या रेवेन्यू सोच के चल रहे हो, कितना एक्सपेक्ट किया तुमने? भाई क्या स्टार्टिंग 6 मंथ का मैंने बताया ना, जो कैलकुलेट करके 700, ये स्टार्टिंग में अगर हम लोग 6 महीने सही से काम करते हैं तो हम लोग को 6 to 7 लाख रुपीज आ जाएगा। और रिटर्न इसका रिजल्ट अच्छा दिखा, अभी 1 महीना भी हम लोग वर्क किए इस पे, रिजल्ट अच्छा दिखा है। क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर पा रहे हैं कि पटना के लोग अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, और बाहर के लोगों को ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे रांची वगैरह में हम लोग का बिजनेस, वहां से ज्यादा बिजनेस आया इन कम्पेयर टू पटना। जैसे देखिए सर, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली संस्कृत का टीचर चाहिए, कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा फंडा, संस्कृत का किसी को टीचर चाहिए, हम लोग रंजीत इसको जरा खींच के बंद कर दो, जोर से खींच के इसको जोर से बंद कर दो। यस सर, हाँ, हम लोग ऐड चलाएं कि अगर आप फ्रेंडली शिक्षा, मतलब ट्यूशन के लिए चाहिए, होम ट्यूशन वगैरह, ये ऐड हम लोग चलाएं, ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे गार्जियन वगैरह का हम लोग लेडी टीचर को टारगेट करके चलाए हुए थे। तो गार्जियन का हम लोग के पास आया, तो उनमें से आया था कि मुझे संस्कृत टीचर चाहिए। तो हम लोग क्या किए कि लोकेशन टारगेट किए, किस एरिया में सर आपको मैम टीचर चाहिए, ठीक है, कितना बजट में चाहिए, और उस लोकेशन में हम लोग फिर संस्कृत का टीचर के लिए ऐड चला दिए कि वी आर हायरिंग संस्कृत टीचर्स, या दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग संस्कृत और अर्न सम हैंड्स अप मनी, देन कॉन्टैक्ट अस। तो ये जब ऐड चला है तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स का लिस्ट आ गया, तो वहाँ पे हम लोग टीचर प्रोवाइड कर दिए। तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा अभी तो अर्न नहीं किए बट नहीं, concept or strategy is fine. लेकिन अब I would like to ask you one question. Yes, now, excuse me, you are working on it on a pan India basis or on a particular region basis, on regional basis?
सर कैसे तुम काम कर रहे हो? पैन इंडिया बेसिस पे अभी बात कर रहे हो कि रीजनल बेसिस पे बात कर रहे हो? अभी सर हम लोग बिहार झारखंड पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है। पैन इंडिया में अभी बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे। ठीक है, ठीक तो है। ये सब जो भी हमारा सोशल मीडिया का है, ये तो हम लोग अभी नर्चर कर रहे हैं लोगों को, कि लोग अभी एजुकेट हों 4 महीना 6 महीना कि क्यों जरूरी है। बहुत हमारा जो Now व्हाट्सएप that is ग्रुप fine. Have you made some application also, Android app also? नो सर अभी नहीं बना हुआ है। अभी you have not made any Android app. नो सर, All ये right, सारा so तुम्हारा कोर्स हो गया। so ये basically सब तुम्हारा ये जैसे कि concept है that you Yes, would register the teachers with you, and you Yes, will sir. be open to provide the tutors to the teachers, to the people looking for teachers in different areas. Everybody, I believe Yes, both sir. of you. यही तुम्हारा objective है ना? यस सर। I have got a couple of questions, though there are some good things. क्योंकि बच्चों को पढ़ा तो तुम भी सकते हो निखिल. All right. यस सर। You have some ability कि तुम 6th 7th के बच्चे को पढ़ा सकते हो, and I agree to it. But there is a point. If you go to join a school, so they keep a certain criteria. They not only look for graduate or masters, rather they also look for some B.Ed. तो ये एक तरीके से स्कूल्स वाले जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि उनके पास जो टीचर्स आ रहे हैं दे आर वेल क्वालिफाइड, और तुम यहाँ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुमने केवल ये मान लिया कि अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, even if you have passed intermediate and if you can teach a student of standard 6, तो आप हमारे यहाँ टीचर बन जाइए। How will you ensure the quality parameters कि आपके पोर्टल के थ्रू जो मुझे टीचर्स मिलेंगे they are well qualified? वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, ये कैसे इंश्योर करोगे? सर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि हम लोग एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। जो भी हमारे पास फॉर्म्स आया उनसे पहले पूछेंगे कि वो कभी पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, उनका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। हम लोग सबको हायर नहीं करेंगे। अच्छा, जस्ट गिव मी एन एलिजिबल तो है एग्जांपल। गिव मी एन एग्जांपल निखिल। इमेजिन करो यू हैव ओपनड अ स्कूल। यस सर। wherein you have used the same method कि हमको कोई B.Ed पीएड नहीं चाहिए। We will simply look for the people and we will take the interview, और इंटरव्यू में देखेंगे कि हमको जो ठीक लगेगा उसको टीचर का ड्यूटी दे देंगे। Aren't you going to follow the similar method here also? सर यस सर। इसका ये मतलब हुआ एक चीज हो कि in order to teach, इसका ये मतलब हुआ निखिल कि in order to teach my ward who is in standard 3 or 4 or 5, you might give me a inter pass student also, and there are chances कि लोकल लेवल पे मैं इंटर पास बच्चों से भी अपने 5th और 6th के बच्चों को पढ़वा लूँ कि बच्चा बहुत तेज है, पढ़ा दो बेटा। ये तो हम मोहल्ले में भी करते हैं कि आपको पढ़ाने आता है, चलिए आपको कुछ नहीं पढ़ाने आता है, इंग्लिश ठीक है इंग्लिश ही पढ़ा दीजिए, मैथ्स मत पढ़ाइएगा, जो पढ़ा सकते हैं वही पढ़ा दीजिए। ये हम लोकल लेवल पे तो करते हैं, लेकिन क्या प्रोफेशनल लेवल पे तुम ये कर सकते हो? कैन यू अफोर्ड टू डू दिस? इमेजिन करो कि एक तुम्हारे पोर्टल से मैं टीचर को लूं, मैं अपने स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6 के बच्चे को पढ़ाने के लिए, और हो सकता है कि कोई दूसरा पोर्टल हो जो कहता हो कि हम केवल B.Ed और M.Ed ही टीचर को रखते हैं, वी ओनली कीप सर्टिफाइड टीचर्स। मेरे को कहाँ से टीचर्स लेने में क्वालिटी को लेके मैं ज्यादा अश्योर्ड होऊंगा, तुम्हारे यहाँ से या वहां से जो कहते हैं कि हमारे यहाँ केवल B.Ed के लोगों की जरूरत है? सर जैसे कि होता है कि सॉरी फॉर Vivek, you can answer. Nikhil can also answer. Anybody? ओके सर सर देखिए होता क्या है, एक मिनट निखिल रोड। हाँ, होता क्या है सर कि B.Ed वाले टीचर्स हो सकते हैं कि ट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन होता क्या है कि अगर वो टीचर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, B.Ed है, M.Ed है, जो भी है, तो उनका ट्यूशन का चार्जेस भी ज्यादा रहेगा। तो ये अगर देखा जाए तो सभी गार्जियंस एफर्ट नहीं कर पाएंगे सबका फी। और स्कूल में जहाँ तक बात है, स्कूल में B.Ed M.Ed जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो है मेनली है कि एकेडमिक्स को लेके चलना है, कि एकेडमिक्स में बढ़िया मार्क्स आना है, बढ़िया मार्क्स आना है। बट ट्यूशन में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मुझे इस बच्चे को जो भी डाउट है, वो जो भी डाउट क्या मतलब जो भी टॉपिक है, वो टॉपिक का कंसेप्ट को क्लियर समझा देना है। और क्या कहते हैं, स्कूल में है कि उसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मेलिटीज रहता है, प्रोसीड्यूर्स रहता है, इस वजह से वहाँ का बात अलग हो जा रहा है। लेकिन ट्यूशन पे सर इस चीज को हम लोग नहीं कर रहे हैं कि B.Ed जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एक 12th पास किया हुआ है, लेकिन वो 6th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है। चलिए ठीक है। एनीवे बिजनेस प्रोजेक्ट तुम्हारा जो भी हो, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि तुम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को केवल थियोरेटिकली पढ़ और पढ़ा नहीं रहे हो, यू हैव यूज्ड इट। तो मेरी जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई का प्रॉपर फायदा का इस्तेमाल तुम कर रहे हो, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड डूइंग SEO ऑल्सो। अपना सोशल मीडिया पे भी तुम काफी एक्टिव हो, ऑलराइट। और SEO वगैरह को भी तुम लोग अच्छे से देख रहे हो, रेगुलर लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि तुम पोस्ट कर रहे हो या तुमने कोर्स बना रखे हैं अपने डोमेन से रिलेटेड। तो फेसबुक सोशल मीडिया पर तो तुम काफी एक्टिव हो।
and I'm very happy that you are working on this particular project. ये बताओ मेरे को, अभी तक तुम लोग खर्च इस पे कितना किए हो? How much money have you invested? यस सर, अभी तक हम लोग इस पे टोटली खर्च किए सर 1500 रुपए। 1500 रुपए खर्च किए हो किस चीज में? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहाँ की हो? 1500 रुपए में कहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर लिए? खुद मतलब खुद किए सर। सोशल मीडिया पे सर, मतलब एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया बिहार पे तुम झारखंड अगर को टारगेट फेसबुक और करके। यूट्यूब पे लीड लोगे तो 1500 रुपए में तो नहीं होगा वो काम। सर एक्चुअली पिछले 2 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ और मुझे डिजिटल मार्केटिंग अच्छे लेवल तक आता है। ठीक है, सो आई तो कैन तुम तो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तुमने फेसबुक पर पेज बनाया, ये 1500 रुपए जैसे हम भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अगर यस हम सर। गूगल पे कोई लीड लेते हैं, यूट्यूब पे कोई हाँ लीड हाँ जनरेट करवाते हैं लेते हैं, या अगर हम लोग यस कोई सर। एडवर्टीजमेंट लेते हैं ऑनलाइन, तो दे आर चार्ज ह्यूज अमाउंट। तुम्हारा यस सर। 1500 के बजट में तुमने कौन सा काम किया? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। सर हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग लीड जनरेशन के लिए फोकस नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ पे बजट ज़्यादा लगता है। हम लोग क्या किए हैं ठीक है। कि डेली 70-75 रुपए, मिनिमम 75 रुपए का आता है। फेसबुक का बैंड रहता है कि 70 रुपए से ऊपर ही चलाना है, तो 70 क्या रुपए आता से है? प्लस 70 रुपया कम से कम सर एक दिन का ऐड चलेगा। पर डे का बजट होना चाहिए मिनिमम ठीक है। 70। तो हम ठीक लोग है। 70-80 रुपए का बजट चलाए हैं और बूस्ट पोस्ट चलाए हैं, और वहाँ पे ठीक है। पोस्ट में क्लियरली मेंशन कर दिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर, क्लियरली दिखाओ। मेंशन कर दिया कि जो भी क्वेरी वगैरह है आप हमारे कमेंट कीजिए, और कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप बटन डाल दिए हैं। तो ठीक है। आपको एडवर्टीजमेंट के लीड फॉर्म भरने का जरूरत ही नहीं है, तो वो कॉस्टिंग ही बच गया हमारा। ठीक है। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ सर, यहाँ पे ओपन हो रहा है। और जैसे फिर कि सर अभी जैसे कि हाँ, मतलब बोलो। टारगेट भी देखा जाए तो सिर्फ कितने लोग कुछ भी मिलकर तुम शहर लोग ये को कर रहे हो? निखिल निखिल और विवेक तुम दोनों मिलकर कर रहे हो इसको एक्चुअली, या यस केवल सर। तुम निखिल तुम दोनों मिलकर कर रहे हो? यस यस सर। सर। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ बोलो विवेक, यू आर सेइंग समथिंग। हाँ सर, मतलब 1500 में इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि झारखंड है तो पूरा झारखंड को, झारखंड में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ रांची को टारगेट किया होता है। ठीक है। हम लोग ठीक है। बहुत स्पेसिफिक चला रहे हैं। जैसे 2 दिन हम हाँ लोग ठीक है, ऐड चलाए हैं रांची। सेगमेंटेशन विल डू। तुम पर्टिकुलर लोकेट करो, एरिया को लोकेट करोगे, दैट इज यस फाइन, सर, आई 2 गॉट दिन इट। हम और लोग सर पूरे अगर रांची को टारगेट करके क्लिक जैसे ऐड बहुत चलाए। ज्यादा हो रहा है ऐड पे, तब तो फिर हमारा वो कॉस्ट पर क्लिक, और मतलब जितना ज्यादा क्लिक हो रहा है उतना ज्यादा वो घट जाता है। इसीलिए ठीक सर है। इस पे मेरे को तुम कुछ पेज पे अपना व्हाट्सएप बटन दिखा रहे थे, कॉल टू एक्शन, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यस सर, यस हाँ सर, यस सर, निखिल, मैं दिखा रहा हूँ वो नीचे में सर। संस्कृत वाले में शायद होगा, देखो, हाँ, या फिर वहाँ मैनेजर्स ओपन करने पे भी दिखेगा। 2 दिन सर हम लोग रांची को टारगेट करके पूरा एड्रेस चला दिए कि जिनको भी होम ट्यूशन वगैरह चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो कितने और लोगों ने तुमको कांटेक्ट किया? सर मैं दिखा दे रहा हूँ सर आपको। नहीं दिखाओ मत, मेरे को तुम सर बात करो ना, आई कैन मेक आउट दैट यू हैव कांटेक्ट सम सर, सेंस। सर टीचर्स तो बहुत सारे आए, मतलब 200-300 प्लस टीचर आए हमारे पास। ठीक है। 70 रुपीज में तुमने रांची जोन को टारगेट किया, यस सर। और 70 के आसपास लोग तुम्हारे आए, है ना? यस सर। निखिल अगर कट जाएगा तो मुझे को एक बार कॉल कर लेना तुम। ओके सर, ओके सर। जैसे कि ये संस्कृत टीचर का रिक्वायरमेंट है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर मॉडल को और अच्छे तरीके से क्लास को समझाना चाहिए कि तुमने किस तरीके से इसको सोशल मीडिया पर भी सर टाइम आप बोले थे 5 मिनट के अंदर समाप्त करने के लिए। नहीं 5 मिनट तो तुम लोग नहीं लियो, तुम लोग पिछले दिन भी बताए थे और आज भी बताया हो। पिछले दिन थोड़ा नेटवर्क का लगातार प्रॉब्लम आ रहा था, तो आज उस पर हम लोगों ने थोड़ा वर्कआउट किया, और आज तो नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, कट भी जा रहा था पिछले क्लास में। मैं तुम्हारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जो तुम लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पे तुमने इसको प्रमोट किया, लिंक लगा के या की लगा के या कॉल टू एक्शन। सर अभी तो खुल ही नहीं रहा है वो वाला। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने एक दिन का एक जोन लिया, व्हाट यू टुक वन एरिया ऑफ रांची एंड यू पेड ओनली 70 रुपीज फॉर वन डे। यस सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ मेरे को, तुम लोग 700 रुपीज चार्ज कर रहे हो पेरेंट्स से, गार्जियन से? टीचर से, गार्जियन से कोई चार्ज नहीं। टीचर गार्जियन को से अगर कोई हम चार्ज? क्वालिटी लीड देते हैं, हाँ, ठीक अगर है। उनका तो ट्यूशन 700 जो तुमने, ठीक है, क्वालिटी लीड देते हो, समझ गया। अब मान लिया कि तुम्हें 200 लोगों ने, 200 पीपल कॉन्टेक्टेड यू। यस सर। अभी जो 200 पीपल हैव कॉन्टेक्टेड यू, 200 लोगों ने जो तुम्हें कॉन्टेक्ट किया है, यस सर। इस पर्टिकुलर, अभी हमारे पास कितना टाइम बाकी है? 6 मिनट। अच्छा, कट जाएगा तो एक बार दोबारा से हम लोग इसको रीज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। जितेंद्र, हेलो। एनीवेज,
तो तुमको जो लीड आए, कितने लीड्स को तुम लोगों ने अपने में रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर पाए? रजिस्ट्रेशन चार्ज सर हमारे पास नहीं ना है, जीरो है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। आप फ्री तुम ऑफ कॉस्ट 700 हमारे पास रुपीज किससे लेते हो? 700 रुपीज किससे लेते हो? यस सर मैं बता रहा हूँ 700 कैसे लेते हैं। 700 तब लेते हैं जब हम आपको ट्यूशन दे दिए और वो ट्यूशन फिक्स हो गया कि हाँ आपको यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना है। अच्छा, डेमो ट्रायल वगैरह सारा कुछ हो जाता है, गार्जियन को भी टीचर पसंद आ गया और टीचर का भी हो गया कि हाँ मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद फिर ये चार्ज 700 चार्ज करेंगे। और उसके बाद अगर तुम तो टीचर से चार्ज करोगे? यस सर Yes, sir. 700। अब इमेजिन करो यू आर हियर इन पटना, तुम्हारी सिक्योरिटी क्या है, इंश्योरिटी तुम कैसे करते हो? सपोज यू आर हियर इन पटना, रांची में किसी को टीचर चाहिए, संस्कृत टीचर, पीपल अप्लाइड यू, रांची के ही किसी आदमी ने अप्लाई किया और उसने उसके घर गया और ही वेंट टू हिज हाउस, वो आदमी उसके घर गया टीचर, और घर पर उसको पसंद आ गया कि हाँ भाई सर हम आपसे पढ़ेंगे, एंड नाउ इफ ही रिफ्यूजेस टू पे यू 700 रुपीज, व्हाट इफ ही सेज कि नहीं सर हमको नहीं पढ़ा रहा है? What? ये चैलेंजेस हम लोग को आया हुआ था सर। सर ये चैलेंज आया है और इसके लिए सर हम लोग को एक चीज ध्यान दिए थे कि फीडबैक, अगर फीडबैक लेते हैं रेगुलरली, मतलब टीचर, हाँ, यस सर, फीडबैक पे ध्यान दिए कि अगर हम लोग फीडबैक लेते हैं तो होगा क्या कि एक मतलब थोड़ा सा उसके लिए हम लोग को होगा कि इमोशनली कुछ वैसा में भी करना पड़े कि नहीं वो बंदा ऐसा ना करे। नहीं, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैं कहना चाहता हो हूँ, गई, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर केस हुआ, क्योंकि अभी तो तुम्हारा छोटा लेवल है कि तुमको एक रांची का केस मालूम है, तुमने बोल दिया, मान लिया ये बड़े लेवल पे हो रहा है, ऑलराइट, जैसे ओला है। अब ओला वाले जो पेमेंट लेते हैं या उबर वाले जो पेमेंट लेते हैं, ड्राइवर को मालूम है कि कब उसने कस्टमर को पिकअप किया, कहाँ ड्रॉप किया, पैसे का हिसाब किताब एकदम ट्रांसपेरेंट है। वो चाह के भी झूठ सच नहीं कर सकता कि नहीं हमने कस्टमर को पिकअप नहीं किया, या कस्टमर उसको झूठ नहीं बोलेगा। थिंग्स आर ऑन सिस्टम। यहाँ पर ट्रस्ट का कोई मामला ही नहीं है। आपने ये चीज खरीदा, यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट। अगर मैं कोई गूगल पे ऐड करता हूँ तो मैं 5 दिन का अगर पेमेंट लेता हूँ तो मैं पेमेंट करता हूँ, 5 दिन बाद ऑटोमेटिकली खत्म। अगर गूगल कहता है कि इट विल प्रोवाइड मी 100 लीड्स, तो 100 लीड्स दिया और कहानी खत्म। मैं झूठ नहीं बोल सकता, गूगल मेरे को झूठ नहीं बोल सकता, वो काउंट कर लिया, उसका कहानी खत्म ऑटोमेटिक। इसमें ट्रस्ट फैक्टर कहीं है ही नहीं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी। और तुम्हारे केस में क्या है कि लोगों को ट्यूशन मिल गया, अब वो आपके पास क्यों जुड़े रहे? सपोज करो इफ ही और शी वांट्स कि हमको दोबारा आपके साथ काम ही नहीं करना है जी, अब आप कैसे करेंगे? सर इसके लिए मैंने पहले ही बताया हुआ था कि हम लोग स्टूडेंट को और व्हाट्सएप पे डेली कुछ ना कुछ कंटेंट देंगे, गार्जियन को भी नर्चर करेंगे और उनको एजुकेट करेंगे कि अपने बच्चों को आप दीजिए, जैसे डेली अवेयरनेस हो गया और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चा है तो और उनको क्या करना चाहिए एजुकेशन के लिए, तो उनसे वो हम लोग कनेक्शन बना के रखेंगे। और दूसरा चीज कि हम लोग हर वीक में कॉल जाएगा गार्जियन के पास कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, किस टाइप से पढ़ा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अगर बोलिए, टीचर तुरंत चेंज कर देगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब हम लोग रखे हुए हैं। टीचर आप कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि पेमेंट तो वो उस टीचर को दे रहा है, पेमेंट तो तुमको दे नहीं रहा है। उन दोनों ने आपस में बात किया कि मेरे को 2000 दो या 1500 रुपए दो। एग्जैक्टली सर, ये चैलेंजेस हम लोग को आया हुआ था। दूसरा हाउ कैन यू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द टीचर एंड द बिहेवियर ऑफ द टीचर? क्योंकि तुम पटना में हो, किसी अजय कुमार ने तुमको अप्लाई किया या सुनील कुमार ने अप्लाई किया, उसको तुमने टीचर के रूप में रखा और किसी के घर भी भेज दिया। द पर्सन डजंट नो अजय, द पर्सन नोज योर कंपनी कि मैंने फ्रेंडली शिक्षा से लिया है, एंड ही डज समथिंग रॉन्ग, ही डज समथिंग अनएथिकल। कैसे तुम इंश्योर करोगे कि तुम्हारे टीचर की ये क्वालिटी पैरामीटर है? मान लिया कि मैंने ओला के ड्राइवर को बुलाया, तो मैं तो ओला को जानता हूँ, ड्राइवर के नाम पे तो कोई भी आदमी गाड़ी लेके चला आएगा, लोकल आदमी जो मेरे आजू बाजू है, लेकिन वो मेरे साथ कुछ भी बदमाशी करेगा तो मैं क्या कहूंगा? बदमाशी किसने की? रमेश नाम के ड्राइवर ने की या ओला ने की या ओला के ड्राइवर ने की? ओला के ड्राइवर ने। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो तुम कैसे इस बात को इंश्योर करोगे? कैसे इस बात को इंश्योर करोगे? ये फ्री रजिस्ट्रेशन हम लोग सर आ रहा था हम लोग का भी, आधार कार्ड जैसे ओला उबर के साथ भी सर ये चीज जैसे हमने देखा है कि बहुत बार होता क्या है कि बुकिंग हो गया और ड्राइवर आने के बाद कहता है कि सर आप इस बुकिंग को कैंसिल कर दीजिए, आप इतना रुपये पे कर रहे हैं तो हम उससे कम में ही आपको वहाँ ड्रॉप कर देंगे। हाँ ठीक है, ये चीज ओला के ड्राइवर भी करते हैं। तो इससे देखा जाए तो ओला को तो पता नहीं चलने जा रहा है कि ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा किया। ओला को लगा कि कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल कर दिया, ड्राइवर का अपना फायदा हो गया, ओला को यहाँ पे फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सर लॉस वो तो मतलब लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, तो इसलिए मतलब वो छोटे छोटे लॉस को उतना काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन मतलब हम लोग में भी यही दिक्कत आया, बट इसको ओवरकम अभी तक नहीं कर पाए। इस पे अभी चल रहा है काम सर। अच्छा, उस पे काम चल रहा है। ठीक है, इसका एक तरीका ये हो सकता है
कि तुम लोगों से पेमेंट, अच्छा एक और चीज मेरे को बताओ, इसका एक तरीका हो सकता है, Yes, sir. लेकिन एक और चीज बताओ कि मान लिया कि तुमने ये संस्कृत के टीचर को 700 रुपीज लिया और एक ट्यूशन दे दिया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इमेजिन करो कि चलो संस्कृत के टीचर की डिमांड थोड़ी कम होगी, मान लिया हमने, इमेजिन करो वो मैथमेटिक्स का टीचर होता है या साइंस का टीचर होता है या इंग्लिश का टीचर होता है जिसकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, ठीक है। अब ये बताओ कि वो रांची का है, अगला ट्यूशन उसको मिलेगा तो अगले ट्यूशन के लिए फिर तुम 700 रुपीज लोगे या नहीं लोगे? लेंगे सर, लेंगे लोगे? वो जितना, यस सर, पर मतलब ट्यूशन तुम 700 लेके कितने, चलोगे? यस सर, पर इस मतलब कि अगर एक टीचर है, जैसे आप हैं, अगर आपको हम एक ट्यूशन दिए, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद या 1 महीने बाद आपको एक और ट्यूशन दिए, तो आपको पहले का 700 वो तो लेंगे उस टाइम, और फिर सेकंड का, मतलब वो पर स्टूडेंट 700 है। पर स्टूडेंट 700 है। Yes, sir. पर क्योंकि ब्रोकर में पर मैंने स्टूडेंट या पर ट्यूशन कह सकते हैं। पर स्टूडेंट वन टाइम अमाउंट 700 तुम ले रहे हो। अब हो सकता है Yes, कि sir. वो आदमी बात करे कि मैं आपको 1500 में पढ़ाऊंगा तो भी तुम 700 उससे ले लोगे, और हो सकता Yes, है वो sir. बात करे मैं Yes, आपको आई टीच यू फॉर 3000 तब भी तुम 700 रुपीज ले लोगे। Yes, यही sir. कहना चाह रहे हो ना? Yes, sir. यस सर।